Yes, sir. Okay, good. So guys, just check your chat box. Just check your chat box. So in today's lab, what we'll do, we will do the line drawing algorithm, uh, like your DD algorithm and Brushnam algorithm. Okay. So like in yesterday's batch, I covered both the algorithms. So I'm just sharing the code with all of you. You just try in your systems. If you face any difficulty at any point, you can contact me. Okay, no problem in it. So let me share first of all the code. Guys, I think you all received the code. Please see. द कोड मिल गया क्या आप लोगों को? प्लीज देखना एक बार. Yes, sir. Yes. Okay, guys. So let me first of all explain it. What is it? After then you have to execute it. Okay. बिकॉज कल तो मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया था उनको, बट अब अगर अपने पास कोड रेडी तो अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन कर क्या रहे हैं. सो कैन यू सी दिस नोटपैड फाइल? ये जो नोटपैड फाइल मैंने शेयर की है वो दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, guys. So let's understand what is this DD algorithm. So ultimate target is what? We want to draw a line on the given 2D plane based on some given coordinates. Okay. So whenever we want to draw a line, we need two coordinates like x1, y1, x2, y2, something like that. Okay. So start with header files. Studio and Conio we require to print or scan something. Okay. Or to show the output. Graphics.h is a new header file, guys. So please remember, if you are using Turbo C, then graphics.h header file is already inbuilt in it. But if you are using any other online platform or any other software for this C code, you have to explicitly import that header file in your C drive, basically. Okay. So make sure of it that you have that graphics.h header file in your system. Okay. After then, mat.h to perform some mathematical calculations. Dos.h is basically for delay. We are using delay somewhere in our code. What is delay? That will explain later. Okay. So this is your main function. Now, guys, as I told you that graphics.h, because whenever we are performing any graphics program, any computer graphics and multimedia program, we have to import graphics.h header file, because ultimately we want to draw something on our screen. Okay. So in that case, guys, please make sure that there is a graph, that there is a function which is defined in graphics.h, which is nothing but the init graph. What is this? Basically, it initiate the graph coding in your program. That is what the meaning of init graph. So there are three arguments. That is, if you can see, that is address of GD, address of GM, and then part2 driver. So what is this first one? That is the graphics driver. So there are n number of drivers available in your graphics.h header file, like VGE or ECE or ETA, something like that. Okay. So here, if you see at the time of declaration, we declare this GD as detect. So what is the meaning of it? It is the by default driver. By default driver means based on the compatibility present in your system, it automatically detects the suitable driver with respect to your code. That is what the meaning of detect. So always we have to declare or initialize our CD as detect. Detect means it automatically detects the suitable driver with respect to your program. GM is nothing but your graphics mode. There are different type of modes available. So that is the graphics mode. It also automatically detect the suitable graphics mode. Okay, मतलब ये basically normal program से graphics mode में jump करने के लिए एक variable define है graphics.h में. After then, guys, this x1, y1, x2, y2 is nothing but the coordinates जिसके थ्रू आप लाइन ड्रॉ करोगे. आफ्टर देन दिस स्टेप्स एक ऐसे वेरिएबल ले लिया मैंने कि क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा आपको. ठीक है. x in y in is nothing but the incremented value of x and y. Okay. After then dy dx is nothing but your y2 minus y1 and x2 minus x1. So जैसे कि init graph जैसे मैंने initiate किया, there are three arguments. The first one is address of GD, that is graphics driver, address of graphics mode,
and this is nothing but the part 2 driver. So if you are using a turbo C or Windows operating system, you just see, देखो यहाँ पे देखो C ड्राइव के अंदर गया मैं, C के अंदर मेरा फोल्डर है टर्बो C3 और उसके अंदर रखा है BGI फाइल। तो आप चेक कर लेना, हो सकता है आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर C के अंदर TC फोल्डर में BGI फोल्डर हो, तो जहां भी BGI हो उसका पाथ देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे केस में ये था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला पाथ दे दिया। इफ यू आर यूजिंग मैक, then pass null string over here that automatically detect the suitable part 2 driver. Okay, after then you are asking the enter the coordinates of x1 y1, enter the coordinates of x2 y2। तो यहां तक हो गया कि अपने पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए और अपन ग्राफ मोड के अंदर इस समय हैं। After then you have to find the value of dx and dy because ultimately we have to calculate the value of m if you remember DDA algorithm। तो DDA क्या बोलती थी कि आप m निकालो, m कैसे निकलेगा, dy by dx। so dy is nothing but x2 minus x1 and dy is nothing but y2 minus y1। जैसे आपने दोनों वैल्यूज निकाली, now put the condition if your dx, absolute value of dx means we are talking about magnitude, not the sign। okay, so this absolute function is defined in your mat.s, that's why I used over here। okay, so if your dx value is greater than dy, you have to just assign the maximum value in the steps variable। Guys, why we are taking this steps, because when क्योंकि DDA एल्गोरिथम ये बोलती है कि जब आप नया पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो आप का जो भी डिफरेंस आया है dx और dy का, उससे आप अपने मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली m निकाल रहे हो आप, बेसिकली m इज नथिंग बट dy by dx। तो देखो इनडायरेक्टली ये जो स्टेप्स है ये बेसिकली m ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो अपन ने dx dy निकाला, फिर अपन ने जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको स्टेप्स में असाइन कर दिया, फिर x इंक्रीमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, dx बाई स्टेप्स, और y इंक्रीमेंट में dy बाई स्टेप्स। ओके, तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज इट इन आवर कोड। ओके, तो यहाँ के थ्रू क्या होगा कि आपका नया आपको x इन y इन मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पुराना x1 y1 है। फिर आप इसको एक लूप लगाओगे क्योंकि आपको उस पॉइंट से लास्ट एंड पॉइंट जो गिवन है x2 y2 वहां तक मूव करना है। तो x I less than 0, I less than steps, I plus plus, put pixel is nothing but it is defined in your graphics.h which is basically draw the pixels। ये प्रिंट नहीं करेगा पिक्सल वैल्यूज को, जैसे न्यूमेरिकल के टाइम पे तो अपन वैल्यूज पता कर रहे थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 2 है तो नेक्स्ट 1 2 होगा और फिर 2 2 होगा, समथिंग लाइक दैट। Put pixel means it draw the coordinates based on the given argument। So x1 y1 is the initial coordinates, वहां से start करेगा। This is nothing but the macro, guys। Instead of this macro, you can also use any numerical number because with respect to each numerical value there will be one color defined in your C। okay, so either you can use white as a macro or you can use 1 2 3 4 5 whatever be the color you want। okay, so put pixel basically that draw the pixel values based on the given argument। now you have to increase your x1 by increasing with x increment, increase your y with y increment। delay is nothing but guys it is defined in dos.h। okay, so what is the meaning of it? Meaning is when you move from one pixel to another pixel there will be delay of 50 millisecond। that is what the meaning of delay। तो अगर आप डिले यूज नहीं करते हो तो देयर इज नो एरर इन इट, वो सीधे एक लाइन दिखा देगा। बट इफ यू आर यूजिंग एनी डिले वो आपको लाइन ड्रॉ करते हुए दिखाएगा, ऐसे लाइन चलेगी आपके पास, ठीक है। सो दैट इज द डिले। आफ्टर देन गेट्स, दिस इज द कंप्लीट फॉर लूप। आफ्टर देन गेट CS to show the output on the output screen, and close graph means whenever you are initiate your graph you have to close it so that after this you can come out from the graphics mode and you can do your simple programming। So this is what guys the DDA algorithms that we have already seen in our theory class, but in practical you have to know that how the line is drawn on your computer screen। make sure it guys, whenever you pass any coordinates like x1 y1 x2 y2, for example you pass 200 300 300 400, 200 300 is nothing but x1 y1 and 300 400 is nothing but x2 y2। okay, so I mean एक ऐसे बहुत छोटे कोऑर्डिनेट्स मत देना, नहीं तो लाइन आपको दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं देना है कि 10 15 और 20 25, नॉट लाइक दैट, क्योंकि फिर वो 1-2 पिक्सल आएंगे। तो कुछ लार्ज वैल्यूज आपको पास करनी है, फॉर एग्जांपल 100 200 200 500 समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो लाइन बनती हुई दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गाइस वेरी सिंपल कोड ऑफ DDA algorithm। So please, I already shared this file in your chat box. You please take the reference of it and try to draw। Okay, मैं एक काम और करता हूँ, गाइस, मैं मेरा टर्बो से ओपन करता हूँ और आपको ये वाला कोड रन करके बताता हूँ, ठीक है। समझ में आया क्या आपको?
समझ में आया क्या गाइस? डीडी एल्गोरिथम, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में अपन यही तो करते थे, यस और नो? बोलो भाई। यस सर, बट वो मतलब ओपन कैसे करना है सर, एक बार बता दो आप, क्योंकि हाँ टर्बो से। मैं टर्बोसी तो सिंपल आपको ओपन करना है ना, क्या दिक्कत है? टर्बोसी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? हाँ सर। बस तो इसमें जैसे ओपन करोगे, फाइल में जाओ, न्यू फाइल ओपन करो और अपना कोड लिखो। मेरी फाइल बनी हुई है तो मैं ओपन करके वैसे निकालूंगा। डीडीए कोड नाम से देखो, ये वाली फाइल है जो अभी मैंने आपको कोड दिखाया है, वो ये वाली फाइल है बेसिकली, ठीक है? वहां भी अपन यही कर रहे थे, 5 हेडर फाइल्स थी, इनपुट लिया, dxdy निकाला, इंक्रीमेंट किया, फोर लूप लगाया और क्लोज ग्राफ कर दिया, ठीक है? सो लेट्स रन इट गाइस, बिकॉज आई नो कि अब आप लोग सी पे काम नहीं करते हो, टर्बो सी पे बेसिकली। तो जस्ट फॉर योर रिफ्रेश कि हाउ टू कंपाइल एंड रन इट, सो either there is a button like compile and run as you can see, but as a shortcut to compile you can use alt F9. So once you press alt F9 it shows if is there any compiler error. So in our case there is no error. To run it, it is control F9. So once you enter control F9 you will see your output screen as enter the coordinates x1 y1. So as I told you, let us assume our coordinates is 200 and 300. Okay, this is the value of x1 y1. Same for endpoint coordinates is nothing but x2 y2. So for example it is 300 and 400. Yes, now see guys, you can see the line is moving with, I mean every pixel with the gap of 50 millisecond. So that's the use of delay. Okay, now guys, one more thing, please remember it. Whenever a line is drawing in this screen, the origin or the 00 is counted as the left uppermost corner. It means ये जो corner है आपका left uppermost corner, ये आपका 0,0 है। यहां से वो 200, 300 और 300, 400 coordinates लेके line draw करेगा. So make sure of it. Don't confuse with m greater than 1 or less than 1. Okay. In whenever a program run any line, ड्रॉ एनी लाइन, इट अज्यूम लेफ्ट अपर कॉर्नर एज द सेंटर 0,0। तो वो वहां से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 100 जाएगा और वाई एक्सिस डायरेक्शन में 300 जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स है मतलब उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है? समझ में आ गया मेरी बात? यस और नो? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट गाइस यू कैन आस्क मी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बोलो कोई डाउट हो तो, है क्या कोई डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? सर ट्राई करके बताते। हाँ, तो एक काम करो, अभी आप इस कोड को अपने सिस्टम पे रन करो, अगर किसी को कोई इशू होता है तो मुझे बताओ, मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ और फिर उस इशू को रिजोल्व करते हैं, ठीक है? ओके So सर। guys, next 10 minutes is yours. You just copy and paste in your Turbo C and try to implement it. Okay? Just see it. फिर मैं एक टास्क दूंगा आपको, वो भी करना है और 10 मिनट में ही करना है गाइस, क्योंकि अपने को एक ब्रेसनम का कोड और करना है। जल्दी कीजिए, ठीक है? कोई इशू हो तो मुझे बता देना।
हुआ क्या बच्चों? सर ड्रॉ नहीं हो रहा कुछ। कपिल आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। यार प्रेजेंटर प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर दिख रहा है आपको? इसमें ये करो ना, स्टार टर्बो C++। स्टार टर्बो C++। स्टार टर्बो C प्लस है, ये है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये स्टार टर्बो C++ नहीं है कि राइट में, राइट बॉटम कॉर्नर राइट बॉटम स्टार, हाँ ओके। क्लिक करो। फाइल ओपन। नहीं, ये सब स्किप कर दो। प्रोजेक्ट्स। कोड कहाँ पे लिखा है आपने? वो कोड दिखाओ ना मुझे, लिखा है कि कोड? हाँ सर, शायद मैंने स्क्रीन का पार्शियली शेयर किया है, एक मिनट। सर अभी दिख रहा होगा आपको। हाँ अभी दिख रहा है, देखो ये। इसमें इसको कैंसिल करो। कोड का है, या तो कोड अगर लिखा हो तो बताओ, नहीं तो फिर न्यू फाइल। हाँ सर ये कोड है। ये रहा सर, ये फुल स्क्रीन ऑल्ट एंटर, हाँ ओके। यस, नाउ आई कैन सी। सर तो रन दबाओ के कंपाइल करो। पहले Alt F9 करो, कंपाइल करो पहले पहले। ऑल्ट F9। देयर इज नो ओके, एरर, ओके। अभी रन करो क्या? हाँ, कंट्रोल F9 कर दो। कंट्रोल एक्सेस डालो, 200 300 कुछ भी डालो, मतलब 200 एंटर। 3। 300, फिर सेकंड डालो, 300 400 डालो। ओके सर। आती रही लाइन, आ रही है ना? हाँ सर। सही तो है क्या? दिख ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर वो हाँ, चलाने में दिक्कत हो रही थी, पहली बार चला रहा सर। अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, कपिल। या एनी अदर स्टूडेंट्स हु फेस एनी डिफिकल्टी? एनी अदर स्टूडेंट्स? एनी अदर स्टूडेंट्स? सभी का हो गया क्या ये कोड? प्लीज एवरीवन रेस्पॉन्ड। देखो इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, बिकॉज आगे फिर यही नेक्स्ट कोड करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए। इसमें किसी को कोई इशू आ रहा है तो प्लीज आस्क मी। I think there is no doubt. Yes or no? सर ये टर्बो सी में पेस्ट नहीं होता है क्या? टर्बोसी में वैसे पेस्ट नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सी ड्राइव में जाके उस सीपीपी फाइल को पेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसको ओपन करना पड़ेगा टर्बोसी में, ओके ओपन ओके विथ। ओके। समझ गए मेरी बात? जैसे ये जो यस। सीपीपी फाइल है ना, इसको अपने सी ड्राइव में जाके बिन में जाके पेस्ट कर दो और फिर ओके ओके टर्बोसी ओपन करके फाइल ओपन करो उस नाम से, तो वो कोड आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा बेटा। ओके ओके।
सर मतलब टर्बो सी प्लस प्लस सिर्फ हमको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करने का है, एडिटर के लिए कुछ और भी यूज कर सकते हैं? नहीं, आपको राइटअप भी इसी पे करना है और एग्जीक्यूशन भी इसी पे करना है। ये तो क्या है, मैंने आपको कोड दे दिया है। अदरवाइज आपको क्या करना है, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है, एक नया फाइल ओपन करनी है, फाइल में जाके न्यू फाइल, और वहां जाके पूरा कोड राइट करना है आपको, और वहीं पे फिर वो कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा। ओके सर। प्लीज डू इट फास्ट गाइस, टुडे विल डू वन मोर प्रोग्राम। लाइन कंप्लीट करना है आज, फिर एसनम भी कंप्लीट करना है, दैट इज जीडीए, क्योंकि आपके एक बैच का हो चुका है। प्लीज डू इट फास्ट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी काइंडली आस्क मी, मैं सब बता दूंगा आपको, प्लीज। शिखर, शिखर त्रिवेदी, शिखर, शिखर, कहाँ गया ये शिखर? ओके, लेट मी चेक कितने लोग प्रेजेंट है। आयुष, 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 अभिषेक कुमार सिंह। यस सर। आयुष नहीं है क्या? पता नहीं सर। देखो, जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनको टीम में से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मैं उनको टीम में से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? आयुष, मैंने आपको रिमूव कर दिया बेटा टीम में से। अखिल, अखिल, यस सर। ओके। श्री साई, श्री साई, श्री साई, रिमूव फ्रॉम टीम। ओके। अनन्या गोस्वामी, यस सर। ओके। भव्या, यस सर। हमजा जामिल, यस सर। यस सर। हरिओम, सर। हरिओम प्रेजेंट है। हर्ष शुक्ला, यस सर। हर्ष, हर्षल, हर्षल सहगल, यस सर। कपिल, कपिल, सर प्रेजेंट। ओके। लक्ष्य, लक्ष्य खेतान, ओके। लवन्या, लवन्या, ओके। सर चैट में लिखा है। मयंक, प्रेजेंट सर। निमेश, जल्दी जल्दी बोलो। निमेश सहानी, निमेश सहानी, ठीक है। निशांत, यस सर। प्रथम, प्रेजेंट सर। रीत, प्रेजेंट सर। सन्मित्रा, प्रेजेंट सर। सन्मित्रा, ओके। सार्थक, प्रेजेंट सर। ओके। सार्थक मग्गू हो गया। सार्थक शर्मा, यस सर। शिखर त्रिवेदी, शिखर, शिखर मैं आपको टीम में से रिमूव कर रहा हूँ, प्लीज रेस्पॉन्ड। सर उसने चैट में लिखा है सर। स्वाति, 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 नो रेस्पॉन्ड। तनिष्क, प्रेजेंट सर।
Swati. Present, sir. Present, sir. Okay. Hello. Yeah. Okay. Yes. Guys, everyone please on your camera. Everyone please on your camera. Please do it fast. कैमरा ऑन करो भाई सब लोग, फटाफट ऑन करो सब लोग. देयर आर टोटल 24 अटेंडीज. जल्दी करो. कैमरा सब लोग ऑन करो फटाफट. निशांत, फोटो नहीं दिख रही आपकी. निशांत अग्रवाल, कैमरे को सेट करो अपने फेस पे. आई नो इट्स मॉर्निंग टाइम बट यू हैव टू अटेंड योर क्लास. मतलब मिसयूज मत करो कोरोना का. एटीन स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन हुआ है अभी. जल्दी करो. सर फोन पे है. फोन पे भी कैमरा ऑन होता है बेटा. पता है बट ठीक है. फटाफट कैमरा ऑन करो. लवन्या, कैमरा ऑन करके कहाँ गायब हो गए? अभी भी केवल 20 का ही है होना. कैमरा सभी का ऑन करो प्लीज एवरीवन. और थ्रू आउट क्लास आपको कैमरा ऑन ही रखना है, ठीक है? डोंट ऑफ योर कैमरा. यस गाइस. तो आई होप गाइस डीडीए का कोड सबने कर लिया होगा, बिकॉज मैं मैनुअली मतलब चेक नहीं कर सकता इस चीज को. अब इट्स अप टू यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू इट. Okay, so shall we move on the next program? Yes sir. Okay. Yes. So guys, the next code I am sharing in your chat box. That is nothing but your Bresnam line drawing algorithm. Okay. So please check your chat box. Have you received it? No, sir. Just wait. Yes guys, please see. मिल गया आपको? मिल गया आपको? Yes sir. चलिए guys, don't open it guys. First of all, understand what is it, okay? So for that, let me first of all show you the PPT that we have covered in our theoretical class. So this is your line drawing algorithm. Can you see my screen? My screen is visible or not? No sir. Not yet. सर अभी नहीं दिख रही है सर. Just wait. Yes. अब दिख रही है स्क्रीन?
अब दिख रही है क्या स्क्रीन? Yes, sir. Yes. अब दिख रही है ना? सो गाइस, ये ब्रेसनल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम अपन ने करी थी। देखो ये इसका प्रॉपर एल्गोरिथम थी, ठीक है। एक बार इसको समझ लो क्या है ये। सबसे पहले अपन ने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कैलकुलेट किया था। उसके बाद अपन ने एक डिसीजन पैरामीटर देखा था, दैट इज नथिंग बट पी के इक्वल टू 2 डी वाई माइनस डी एक्स, डेल्टा वाई माइनस डी एक्स। कैसे आया था ये इस डेरिवेशन में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो अपन ने कल की क्लास में किया था, परसों की क्लास में। देखो ये वाला फॉर्मूला आया था अपने पास, ये वाला। दिस इज योर इनिशियल पैरामीटर, ये अपन ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू पे इफ इट इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 वी हैव टू डू सम डिफरेंट कैलकुलेशंस लाइक हियर। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले dx dy निकालना है, फिर उसके बाद p निकालना है, दैट इज योर डिसीजन पैरामीटर। इफ द वैल्यू ऑफ इट इज लेस देन 0 यू हैव टू इंक्रीज योर x बाई 1, y विल रिमेन सेम, और pk प्लस 1 हो जाएगा pk प्लस 2 डेल्टा y, ओके। Same as if your pk value means your decision parameter value is greater than equals to 0, you have to increase your x and y by unit interval, and you have to increase your pk as pk plus 2 dy minus 2 dx. Is it clear? तो यही एल्गोरिथम अपन ने करी है, और इसी के रेस्पेक्टिव अपन ने यहाँ पे डेरिवेशन भी देखा है, ठीक है ना। तो अपने पास एक देखो ये वाला पॉइंट आया था व्हेन इट इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक ये वाला पॉइंट आया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के, और एक ही अपने पास इनिशियल डिसीजन पैरामीटर आया था। तो इन तीनों के बेसिस पे गाइस अब अपन कोड करने वाले हैं। नाउ लेट मी शो यू द कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कोड वापस से मैं टर्बो सी में जाता हूँ, बिन फोल्डर में ये वाला कोड है, ठीक है। यस, कैन यू सी दिस नोटपैड फाइल? नोटपैड फाइल दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, again STDO and Conio is for just input output processing, graphics for init graph, DOS is for delay, okay. So main function start हुआ, ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट बोला, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज किया, पॉइंट्स लिए x1 y1 x2 y2, p मींस योर डिसीजन पैरामीटर, dx dy इज फॉर डिफरेंस, ओके। इनिट ग्राफ इनिशियलाइज किया मैंने with passing as graphics driver as address, graphics mode as address and your part2 driver, okay, same as previous one। फिर मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले लिए, ओके। आफ्टर देन आई कैलकुलेटेड dx and dy। so once I have dx and dy, just see this, after then after dx and dy I have to do p calculation, okay। so for p calculation I calculated p as 2 into dy minus dx as per our algorithm, okay। now just for show this pixel we just use put pixel over here, that is x1 y1 and color is white, you can also use different color, no problem in it, okay। तो यहाँ पे जो पहला पिक्सल है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। now guys after then we use loop, and inside this loop we have two conditions, if it is less than 0 and if it is greater than equals to 0। so if it is less than 0 our algorithm says that we have to increase x by 1, y will remain same, and p becomes pk plus 2 dy। so see this code, in that case we increase x with unit interval and p becomes p plus 2 dy। else means if your p is greater than equals to 0, then we have to increase x and y both by unit interval, and p becomes p plus 2 dy minus 2 dx, okay। so this is the derived formula। after then we did put pixel to show the all the pixels, because देखो यहाँ पे जो put pixel है it shows the initial x1 y1 पिक्सल वैल्यू, ओके। वहां पे जाके लाइन ड्रॉ करेगा, और ये जो है ये इस कोड के बाद x1 y1 चेंज हो चुका होगा, बिकॉज आइदर वी आर इंक्रीमेंटिंग x और वी आर इंक्रीमेंटिंग y, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 y1 वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे है कि बाकी की बची हुई पिक्सल वैल्यूज को ड्रॉ करना, एंड अगेन वी यूज डिले एज 50 टू शो द आउटपुट, वी यूज गेट ch एंड देन close the graph, because we initiate the graph, so we have to do close the graph। so this is what a good practice to close the graph, okay। so I hope guys this code is clear, this code is clear or not? Yes, sir. Okay, if it is clear guys, then please let me run it so that I can show you the output। just wait। yes,
So let me open that file, which is Beeline, I hope. Yes, guys. So this is the code. As you can see, वही काम किया है. सबसे पहले ये किया, चारों कोऑर्डिनेट्स लिए, dx dy निकाला, p निकाला, फिर पुट पिक्सल कर लिया, उसके बाद लूप लगा के p लेस देन 0 p ग्रेटर देन 0 की इक्वेशन डाली और लास्ट में पुट पिक्सल करके इसको प्रिंट कर दिया. So now let's see. There is no compilation error. Now let's run it. Again give some coordinates to it. So let's again give the same coordinates, or you can use different coordinates. So this is the first coordinate. Second one is 300 and 400, something like this. So guys, you can see your line with every pixel is showing with the gap of 50 millisecond. Okay, that is the delay. So that is the line using Bresnam line drawing algorithm. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now everyone please run it in your system. Everyone please run it in your system. And don't off your camera, okay? Please. Throughout class, you have to on your camera. Everyone please run it. If you face any difficulty, please tell me. Guys, only 16 students on your camera. Please, again I am repeating, everyone please on your camera. Otherwise, I will mark as absent. Please, everyone on your camera. मुझे पता है कुछ लोग हो सकता है बेड पे हो, कुछ की मतलब सही कंडीशन में नहीं हो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, बट यू हैव टू अटेंड योर क्लास प्रॉपर्ली गाइस एटलीस्ट. Out of 24, I can see only 18 faces. Let me identify these 6 faces so that I can mark absent. Sir, I am on my computer, so वहाँ camera नहीं. Who is? Everyone please run this code. Copy and paste this code in your C drive bin folder and then open in your Turbo C.
किसी की कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं प्रेजेंटर बनाता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो एंड विल रिजॉल्व दैट इश्यू। शिखर, Shikhar, your mic is working. Shikhar, your mic is working or not? अनम्यूट तो करो खुद को। कैसे सीआर हो यार तुम? अरे बात तो करो कम से कम भाई मुझसे। ओके, आफ्टर दिस क्लास शिखर कॉल मी। ओके, ठीक है। अनम्यूट नहीं हो रहा उसका कैमरा। ओके, नो प्रॉब्लम, आफ्टर दिस क्लास कॉल मी। ओके, guys, those who have completed this Brasnam line drawing algorithm, please do one thing. Again, write the code for DDA algorithm. Please listen it very carefully, okay? But this time you have to draw 4 lines instead of 1 line. And these 4 lines, make sure that these 4 lines make a square in a shape on your screen. आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स सेट करने हैं कि आपकी स्क्रीन पे उन 4 लाइनों से क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? अभी अपन ने कोड किया था डीडीए का, वो क्या किया था, सिंगल लाइन ड्रॉ हुई थी। सो यू हैव टू सेट योर पिक्सल्स वैल्यूज इन सच ए वे दैट कि आपके पास एक स्क्वायर बन के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लीज सी दिस। Okay, let me add one slide over here and let me explain you what I want this time. Yes, can you see this white page? Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please make sure that guys, please remember it. This is your coordinates as 0, 0. Please remember it, okay? So you have to set your pixels in such a way that, for example, you are taking this point as, I mean over here. So your one line is something like this. Now for the second line, this pixel value is same, but this is the different point. Now for third line, this pixel value is same, but this is the different. And fourth line, there is no new coordinate because the first coordinate will be this point and second will be this point. So that type of shape you have to draw on your screen. मेरी बात समझ में आ गई? अभी अपन ने क्या किया था, ऐसी एक लाइन ड्रॉ की थी। अब आपको ऐसा ना करके ऐसी 4 लाइन ड्रॉ करनी है और एक स्क्वायर बनाना है। बात खत्म। बात समझ में आ गई? Say yes or no? Yes, sir. Input क्या लेना है? Yeah. Yes. Please do it, guys. सर इनपुट कुछ लेना है? इनपुट 4 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं ना आपको, 4 लाइन ड्रॉ करनी है तो कोऑर्डिनेट्स तो लेने हैं ही, ठीक है? और गाइज ये वाला प्रोग्राम ही आपको फाइल में भी लिखना है, हार्ड कॉपी बनानी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो मैंने फर्स्ट सेक्शन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। आपका जब एंड एग्जाम होगा फाइनली, वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये सभी को पता है। सो यू हैव टू पैरेलली प्रिपेयर योर फाइल ऑल्सो इन हार्ड कॉपी, नॉट इन सॉफ्ट। तो आपको बकायदा वही एक अपना लैब रिकॉर्ड बनाना है और उसके अंदर वही कोडिंग करनी है, लेफ्ट हैंड साइड वही ड्राइंग बनानी है, आउटपुट लिखना है।
और ये सब करना ही है, रीड करना ही है बेटा ये, बिकॉज देयर विल बी सम मार्किंग बिहाइंड इट। ओके, तो ये आपको पैरेलली आपको करना ही है। ओके, वो सभी को करना है, दूसरे सेक्शन में भी करेगा, वो हार्ड कॉपी सभी को बनानी है बेसिकली। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। तो आपको क्या करना है गाइस, जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है डीडीए का, वो सिंपल नहीं लिखना है। वो कौन सा लिखना है जिसमें स्क्वायर बन रहा है सभी को। और सेकंड प्रोग्राम कौन सा लिखना है जिसमें सिंपल ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, जो मैंने आपको कोड शेयर किया, वो लिखना है। ठीक है ना? ठीक है, यस, प्लीज डू इट, डू दैट प्रोग्राम। स्क्वायर बनाओ अपनी स्क्रीन पे एक। आपको केवल पिक्सल वैल्यूज को सेट करना है, बाकी कुछ नई चीज नहीं है। सिंपली 4 फंक्शन कॉल, या तो फंक्शन के थ्रू कर लो, 4 फंक्शन कॉल करके उसमें आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग ले लो, मतलब इनपुट अलग अलग ले लो, दैट्स ऑल। और जिसका हो जाए प्लीज मुझे बताना। गाइस, सीजीएम की क्लास के बाद कोई क्लास है क्या आप लोगों की? सीजीएम के जस्ट बाद कोई क्लास है क्या? यस सर। किसकी क्लास है? सीएम 11:45 से है वो? हाँ सर, 11:45। चलो फटाफट करो प्रोग्राम। गाइस, अभी 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं डिसकनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज अभी मैं लैब में था, तो अब मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ, तो अभी मैं लैन डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग ये प्रोग्राम समझ गए ना, आपको क्या करना है फाइल में? अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फोन करके भी पूछ सकते हो, या अपना कोड भी मेल कर सकते हो इवन। ठीक है ना? ठीक है ना? बाकी अपनी अभी 10 मिनट बाद क्लास चालू होने वाली है, तो वापस सबको रीज्वाइन करना है। अभी के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, मैं भी लैब में हूँ। ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर।